Good morning. In the previous classes, we have discussed about the different forms of the energy. There we have seen mechanical energy, nuclear energy, thermal energy. So many forms of the energy we have discussed. After that, we have discussed mass energy equivalence. Means how mass is related with the energy or energy is related to mass. Means we have seen that कि E बराबर mc square means energy released when if there is a mass loss of m, then energy released is given by E बराबर mc square, and mass if energy E is released, so m is equal to E upon c square. Now let us start some numerical based on this relation. So first numerical is given, taken from the page number 6.27. You see the question, how much mass is converted? We have to find out what mass is converted into energy. ठीक, पर डे टाइम आपको दिया हुआ है, पर डे मीन्स 24 आवर्स में. इन तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट operated at 10 to power 7 kilowatt. This is the power given. 10 to power 7 kilowatt is the power of operation of the Tarapur nuclear power plant. This is the oldest nuclear power plant in India, which is situated in Maharashtra. It is started to work on 28 October 1969. So this is the case. So let us start the solution of this. First we are going to write down what we have given. चलिए देखते हैं क्या हमको दिया हुआ है. हमें दिया हुआ है पावर P इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है पावर P, पावर हम लिख लेते हैं, पावर P इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 किलो वाट. जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं वाट में, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 7 इंटू 10 टू पावर 3 वाट. दिस विल बिकम 10 टू पावर 3 और 7 10 टू पावर 10 वाट, और इसको हम लिख लेते हैं 10 टू पावर 10 जूल पर सेकेंड, क्योंकि हम सेकेंड में बात करेंगे. एम के सिस्टम में हम चलेंगे तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया जूल पर सेकेंड में. ये आपको पता होगा, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. एंड टाइम वी हैव गिवन, टाइम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 डे. 1 डे मीन्स हाउ मच आवर 24 hours, और in 1 hours 24 into 60 minute into 60 second, तो this will be converted into second. ये हमारा हो गया. This is the time. Then now we have the formula. We know power P is equal to energy consumed E upon total time. This is the formula. ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा. टोटल टाइम T, that is P is equal to E upon T. हम पता कर लेते हैं कि हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड. तो दिस E बराबर कितना हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई टाइम. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पावर कितना दिया है 10 टू पावर 10 इंटू वी हैव गिवन टाइम कितना है 24 इंटू 60 एंड दिस एनर्जी, दिस इज द जूल पर सेकेंड और दिस द सेकेंड, तो सेकेंड विल बी कैंसिल और दिस विल बिकम द जूल. ये हमें एनर्जी मिल गया. अब हमें क्या पता करना है, मास कितना कन्वर्ट हुआ है फ्रॉम दिस एनर्जी. ये एनर्जी कितने मास में कन्वर्ट हो गई. हाउ विल गेट, दिस विल गेट बाय द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन. तो नाउ फ्रॉम आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टीन्स मास एनर्जी relation, what we have given, E is equal to m into c square, where m is the mass which is obtained by the energy E, where c is the velocity of light in vacuum. Its value is equal to 3 into 10 to power 8 meter per second. ये हम पढ़ चुके हैं. तो यहां से अगर हम m फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा E upon c square.
नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ई एंड सी. ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10⁻10 into 24 into 60 multiplied by 60 joule divided by c square. कितना होगा 3 into 10⁸ का स्क्वायर. दिस इज मीटर पर सेकेंड. नाउ सॉल्व दिस 10⁻10 into 24 into 60 into 60. This is the square of 3 into 10⁸. 3 into 3 into 10⁸ into 10⁸. What we will get? Solve this 10⁸, 10⁸, 10⁸2. This will be 3, 20, 3, 20, and this 10⁸ is there. So this will come. Solve this 9.6 into 10⁻³ kg. This is the mass. ये m is equal to how much? R. इसको हम अगर this is 10⁻³ kg means 1 gram. This is the relation. 1 kg is equal to 1000 gram या 10⁻³ gram. तो 1 gram is equal to 10⁻³ kg. By using this, what we can write down? M is equal to 9.6 gram. This is the required amount of mass which will be released per day in Tarapur nuclear power plant, which is operated at 10⁷ kilowatt. This is the answer of this. So this way we have solved this. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द पेज नंबर 6.27. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको अच्छे से आप समझेंगे. ये दिस इज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दिया हुआ है. इसमें क्या है, व्हेन स्लो न्यूट्रॉन्स इज गिवन हियर 0 1 n 1. एटॉमिक मास इज 1. ये एटॉमिक वेट इसका होता है 1 और एटॉमिक नंबर इज 0. आर इंसिडेंस ए टारगेट containing 92 uranium 235. 92 क्या है इसका एटॉमिक नंबर और दिस इज द एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास. यूरेनियम इज ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. ए पॉसिबल फ्यूजन रिएक्शन. दिस इज द रिएक्शन. आप रेडियोएक्टिविटी में क्लास 12 में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ आप समझ लीजिए कि व्हाट इज द रिएक्शन हैपनिंग देयर. तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन इज देयर. फ्यूजन मीन्स क्या होता है, कोई हैवी न्यूक्लियाई इज कन्वर्टेड इनटू लाइटर न्यूक्लियाई. 2 or more than 2 लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है. यू सी 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235. जब हम बम्बारमेंट करते हैं न्यूट्रॉन्स का ऑन इट, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू बेरियम एंड क्रिप्टन ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट, एंड 3 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड एट दैट प्रोसेस. तो ये आपका मिला 92 यूरेनियम 235 पे जब हमने बम्बारमेंट किया यूरेनियम का. तो 56 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरियम, 141 is the atomic mass, atomic weight of the barium, and 36 atomic number of the krypton, and 92 is the atomic mass of the krypton, और आपके 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड हुए. आपको क्या कैलकुलेट करना है कि हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस. कितनी एनर्जी रिलीज होगी हमें कैलकुलेट करना है. जो डाटा दिया हुआ है कि मास ऑफ द यूरेनियम 235 का जो दिया है मास, ये दिया है 235.04 AMU. AMU क्या होता है, ए फॉर एटॉमिक मास यूनिट. मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट. केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा. इसका वैल्यू अगर हम केजी में बात करते हैं तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ द प्रोटॉन के बराबर, या 1.67 इंटू 10⁻27 kg. ये किसके बराबर होता है 1 AMU? C12 कार्बन 12 के जो भी मास होता है उसका 1/12. दिस इज द 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12. तो ये चीज हो गया. हमें तो बहुत ज्यादा डिटेल हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ बात करना है कि AMU में हमारा काम चल जाएगा. तो मास ऑफ द यूरेनियम आपको दिया हुआ है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन हमें दिया हुआ है 1.0087 AMU. मास ऑफ द 56 बेरियम 141 दिया हुआ है 140.91 AMU. मास ऑफ द 36 क्रिप्टन 92 दिया हुआ है 91.926 AMU. एंड
एक चीज और आपको दिया हुआ है, ये चीज आप डिराइव ही करते हैं क्लास 12th में, कि हाउ मच एनर्जी व्हेन 1 AMU 1 एटॉमिक मास इज रिलीज्ड। तो ये आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट इस रिलेशन को यूज करना है कि जब 1 AMU मास डिस्ट्रॉय होता है तो हाउ मच एनर्जी इज कन्वर्ट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग ए लॉस ऑफ ड्यूरिंग ए मास डिफेक्ट ऑफ 1 AMU। ये चीज को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इससे हमें कैलकुलेट करना है कि हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड। तो सबसे पहले चलिए हम सॉल्व इसको करते हैं। वी हैव गिवन द इक्वेशन, चलिए सोल्यूशन करते हैं। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं। 92 यूरेनियम 235, जब हम इस पर बम्बारमेंट करते हैं नाइट्रोजन की, न्यूट्रॉन की सॉरी, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 56, एटॉमिक मास एटॉमिक वेट इज 141, प्लस क्रिप्टन ऑफ एटॉमिक नंबर 36, एटॉमिक मास 92, प्लस 3 मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। तो ये आपको क्या हुआ, इस रिएक्शंस में आपका रिएक्टेंट्स यही हो गया, रिएक्टेंट्स क्या हो गया, दिस इज द रिएक्टेंट्स, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट। तो हम चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज द मास ऑफ द प्रोडक्ट। फिर देखते हैं क्या उसमें कौन सा ज्यादा है, क्या चेंजेज आपको आते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, इनिशियल मास। ये आपका इनिशियल मास हो गया, ये फाइनल मास ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। तो दिस इज इनिशियल मास, या इसको आर मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, मास टोटल मास हम इसको कह सकते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कितना होगा, रिएक्टेंट्स में क्या है 92 यूरेनियम 235, इसका मास हमें दिया हुआ है 235.04 AMU, प्लस न्यूट्रॉन्स का कितना मास दिया हुआ है 1.0087 AMU। दोनों को ऐड कर लेते हैं, we will get what, we will get 236.0487 AMU। दिस इज द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल मास। फाइनल मास दैट इज मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास ऑफ द प्रोडक्ट कितना मिलेगा, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, 3 चीजें हैं, बेरियम है, क्रिप्टन है एंड न्यूट्रॉन्स आ गया। तो पहले हम बेरियम कितने देखते हैं। बेरियम का हमें मास दिया हुआ है 140.91, प्लस मास ऑफ द क्रिप्टन दिया हुआ है 91.926, प्लस ये ध्यान दीजिएगा दिस इज 3 इंटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स हम लिखेंगे। तो 1 मास ऑफ द न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है 1.0087। Now if we add this, what we will get, you can add this, ये हमें मिलेगा 235.8621 AMU। ये हमारा प्रोडक्ट बनने पे मिला है, और इनिशियल हमारे पास मास कितना था 236.0487, और फाइनल जो हमें मास मिला है 235.8621 AMU। यू सी कौन सा ज्यादा है, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर देन द मास ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब मास कहाँ चला गया, प्रोडक्ट जो बना है उसका मास कम आया, मीन्स देयर इज सम डिफेक्ट इन द मास, मास इज लॉस्ट, तो उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो चलिए हम पता कर लेते हैं हाउ मच देयर इज द मास डिफेक्ट। चलिए, तो डिक्रीज इन मास, देयर इज द मास डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन मास, या इसी का दूसरा नाम हो जाता है आर मास डिफेक्ट। ये कितना हमको मिलेगा, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। देखते हैं कितना मिला, मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना आया था 236.0487 AMU,
माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट कितना आया है 235.8621 AMU। पूरे प्लेस ऑफ रखेंगे 4 प्लेसेस तक। इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 0.1866 AMU। इतने आपको, इसको डेल्टा एम ए बोलते हैं। तो ये इतने मास आपका डिफेक्ट हुआ है, मास लॉस हुआ है। चलिए, अब हमें मास तो पता नहीं करना था, हमें पता करना था कि हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड। तो देन फ्रॉम आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन क्या दिया है, एनर्जी रिलीज्ड डेल्टा ई, दिस इज द बेस्ट इक्वेशन, डेल्टा एम सी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। अब इससे हमें ये होता है, हमें इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, हमें मेन जरूरत आपको है, ये हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर डेल्टा एम का वैल्यू हम 1 AMU ले लें एंड वी मल्टीप्लाई विद द वेलोसिटी 3 × 10⁸ का स्क्वायर से, तो एंड वी कन्वर्ट दैट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें आता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है फिलहाल। तो नाउ फ्रॉम गिवन डाटा अगर हमें नहीं दिया होता एनर्जी जूल में पूछता, तो इसको हम कन्वर्ट करते किलोग्राम में और फिर हम यहाँ पे रख करके एनर्जी कन्वर्ट करते जूल में। तो फ्रॉम गिवन डाटा आपको दिया हुआ है कि 1 AMU अगर मास लॉस होता है, अगर मास डिफेक्ट 1 AMU है, ठीक, तो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है 3931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें डाटा दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है, वी हैव एनर्जी रिलीज कितनी है, मास डिफेक्ट कितना है 0.1866 AMU। अगर मास डिफेक्ट है तो इतनी एनर्जी कितनी हो जाएगी 0.1866 मल्टीप्लाइड बाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो आपको एनर्जी जो रिलीज होगी दिस विल बी इक्वल टू 173.725 mega electron volt. This is a very large amount of energy which will be released during the process of nuclear fission. अगर हम इसको चाहें और कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम वी कैन मल्टीप्लाई इट 173.725 इंटू मेगा 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिख सकते हैं, ठीक। या तो अगर जूल में करना चाहें तो 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ तक सिर्फ ये दिखाना था कि डेल्टा ई एनर्जी रिलीज्ड विल बी इक्वल टू 173.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is all about